अन्यगस्य अराबोन, मेरा नाम शिबी वाजपेयी है और आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम वर्ड के एक नए कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे ये झंडा इंडिया का है और ये है कोरिया का झंडा। सो या यू आर राइट। इस वीडियो अबाउट कोरियन लैंग्वेज एंड दिस न्यू कोर्स नेम इज़ कोरियन लैंग्वेज बिगिनर्स कोर्स. So, okay. So, Oppa, Oma, Choaheo, Sarangheo. I think you all know these words very well. आप सब लोग ऑलरेडी ये सब वर्ड्स जानते होंगे और आई थिंक यू नो द मीनिंग. बट अगर आप इसके आगे भी जानना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऑफकोर्स आपको उसके लिए उसकी लैंग्वेज जाननी होगी, उसका कल्चर जानना होगा और उसके बाद में थोड़ा सा डीप में जाना होगा. Am I right? So if you want to know the meaning of the saranghayo, choayo and how these words were created, कैसे ये बने और कैसे इनका मतलब निकला और इसके आगे आप कैसे वो वर्ड्स बना सकते हो, इसका अगर आप जानना चाहते हो तो आप लोगों को उस लैंग्वेज में थोड़ा और डीप में जाना होगा. ठीक है? सो वाई टू लर्न कोरियन लैंग्वेज, क्यों हम ये कोरियन लैंग्वेज लर्न करें? तो जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं कि हमें आई थिंक उसका क्या मतलब निकलेगा और फिर मैं क्यों ही करूँ ये. ठीक है? तो वाई टू लर्न कोरियन लैंग्वेज? ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग इज़ योर इंटरेस्ट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग यू विल डू वेल. तो अगर आप लोग इस पर देखें कि कोरियन लैंग्वेज हमें क्यों लर्न करनी चाहिए, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. आपका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है बट देयर आर सम रीजन दैट आई पॉइंटेड आउट. So the first one is to enjoy K-pop. I think you all know these peoples, BTS and Blackpink. I think you all heard the songs too, DNA, Mic Drop, Kumbaya, As If It's Your Last. ये सब आप ऑलरेडी जानते होंगे और आप ऑलरेडी ये सब गाने सुनते होंगे. बट अगर आप किसी गाने को या फिर किसी चीज़ को इन्जॉय करना चाहते हो तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप उसको समझें. उसको खुद से समझेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि उसके बैकग्राउंड का उसका मीनिंग क्या है और आई थिंक आप उसको और डीपली समझ पाएंगे. तो केवल बीटीएस और ब्लैक पिंक ही नहीं, आजकल के यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा वेव चल चुका है हल्यू का. लाइक दे नो न्यू जीन्स, मॉन्स्टर एक्स, स्ट्रे किड्स. देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स एंड इवन दे स्टार्टेड टू कम टू इंडिया. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उनसे मिलें और उनसे कोरियन में बात करें. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. तो आप उन सबको फॉलो करें ऑफ कोर्स. And the next reason is, of course, you know the Squid Games. Literally, everyone knows. Itaewon Class, Crash Landing on You, Legend on the Blue Sea, and I can name hundred of dramas that you can enjoy. I think you already enjoy. But what what you wait for the subtitles and you depend on that to understand what they are saying. You already wasting your time to read that subtitle. So if you want to watch and enjoy the drama without subtitles, I think you should learn Korean languages. It's really really fun, trust me. So not only entertainment purpose like K-drama and K-pop you can enjoy anytime, but there's a like very work opportunities too, like work in Korean companies. Samsung, LG, Hyundai, Kia, Lotte, SK Energy and Tucson. There are already a lot of Korean companies that are working in India for like last few years, but you didn't know that these were Korean companies, and like it increased. A lot of companies are now working here and finding people to work in their companies. So if you also want to like work in these companies, you have to have a knowledge of Korean and Korean language to work with these companies, and their salary package is also really good. So you can choose it as your career option also. And the next reason is love to learn languages. There are a lot of people that like enjoy learning these new languages, and they find time and there is like their hobby to learn these languages like Spanish, German. But what German, Spanish, and these are like literally very time taking languages, isn't it? But Korean, it's like really compact language, and like you can learn it in like span of 2 months or 3 months, at least a bit of it. So like it's a like really simple language to learn it as a hobby. So it's a good option to go for a Korean language as your new goal. Okay. And last but not the least, scholarship. Study free in Korea through scholarship. Korea is a country that provides a lot of scholarships to study, to go there and study for free. And the main is GK scholarship. So let me tell you the more about like in detail about GK scholarship. It's a like fully funded scholarship by government, Korean government, that will like cover your air cost,
dormitory, and even it will give you the allowance there to enjoy the Korean life and go more deep through their culture and their work culture and their history and all. So you can like if you have knowledge about Korean language, it will be easy for you to get this scholarship and go to Korea to learn more about their culture. And world's simplest language to learn. So these are the like 40 alphabets of Korea, the Korean alphabet known as Hangul. So these are the 40 alphabets, and the total vowels is 21 and total consonants is 19. If you learn just this much, you can read, write, and even a little bit understand Korean. Isn't it really simple? Then here comes the sentence structure is similar to Hindi. It's a plus point for Hindi learners especially. If you learn English, there's a like totally opposite word order, है ना. बट इफ़ अगर आप ऑलरेडी हिंदी जानते हैं और आप कोरियन लर्न करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा उतना. जैसे आप हिंदी बोलते हैं, आपको वैसे ही कोरियन बोलना है. जैसे छोनन मांगो मोक्सुम निदा, ठीक है, आप हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मैं मैंगो खाती हूँ. इट्स अ लिटिल सिमिलर. ओके, so if you want to learn this language, you can go through this course and like analyze if you want to do it or not, and please go for it. It's a really good course. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분의 한국어 선생님 마비입니다. तो यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप श्योरली कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होंगे और कोरियन लैंग्वेज सीखना चाह रहे होंगे. तो चलिए देखते हैं आप एग्जाम वार्ड से ही कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखे. एग्जाम वार्ड ऐसा आपको क्या प्रोवाइड कराता है, ऐसी क्या फैसिलिटीज है जो आप जल्दी से जल्दी कोरियन लैंग्वेज सीख पाए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग हंगल. तो दोस्तों अगर आप कोई भी नई चीज, कोई भी नई लैंग्वेज शुरू करना चाह रहे हैं, सीखना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे पहला कदम होता है उसके अल्फाबेट. अगर आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप ABCD से शुरू करेंगे. अगर आप हिंदी सीखना शुरू कर रहे हैं तो के खे गे यहाँ से शुरू करते हैं. उसी तरह कोरियन का भी जो कोरियन का अल्फाबेट है हंगल, तो हम इस कोर्स में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा वो लर्निंग हंगल, जो कोरियन स्क्रिप्ट है उसको सीखना. बिल्कुल बिगिनर से, एब्सोल्यूट बिगिनिंग से हम शुरू करेंगे. दूसरा है रेगुलर लाइव क्लासेस होगी, रेगुलर क्लासेस होगी और लाइव क्लासेस होगी. असाइनमेंट्स, आपको जो क्लास खत्म होने के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास में हम उसको चेक करके आपको वापस उसका फीडबैक भी देंगे. और प्रोग्रेस चेक, आपका कंटिन्यूस प्रोग्रेस चेक किया जा रहा है कि आपकी जो स्किल्स है कितनी डेवलप होती जा रही है. 24/7 डाउट सॉल्यूशन. आप कभी भी लैंग्वेज पढ़ते समय हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जब हम पढ़ाएंगे आपको लैंग्वेज, तब आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का कहीं से भी आपको डाउट आए, वो आप हमसे मैसेज से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं. और 24/7 आप कभी भी, एवरी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू. मोर फोकस ऑन स्पीकिंग फ्लुएंसी एंड टॉपिक. सो स्पीकिंग फ्लुएंसी, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं वो सिर्फ ग्रामर, वोकेबलरी इन पर फोकस करते हैं, पर जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, मेन फोकस रहेगा वो स्पीकिंग पे रहेगा. क्योंकि अगर सामने वाले आदमी को कोई लैंग्वेज आती है, जैसे कोरियन आती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब वो कोरियन में बात करेगा, कोरियन में स्पीकिंग करेगा. तो स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए भी, और हम वो लैंग्वेज जानते हैं ये दिखाने के लिए भी स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारा स्पीकिंग के लिए हम अलग क्लासेस भी अरेंज करेंगे और स्पीकिंग हमारा मेन फोकस पॉइंट रहेगा. और प्रिपरेशन फॉर द टॉपिक. तो टॉपिक क्या है, TOPIK, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर कोरियन. तो ये कोरियन लैंग्वेज का जो एक टेस्ट होता है वो नॉन नेटिव कोरियन, जैसे कि हम इंडियंस हो गए या दूसरी कंट्री के लोग जो कोरिया में नहीं रहते, उनकी कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक करने का टेस्ट है कि आपको कितनी कोरियन आती है. उसके लिए टॉपिक टेस्ट होता है और इसी टॉपिक टेस्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको बहुत सारी कंपनियों में काम मिलता है, आपको फ्रीलांसिंग का पार्ट टाइम जॉब टाइप का काम मिलता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है आपके लिए, कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स के लिए. फिर इन्वॉल्व के ड्रामा, के पॉप फॉर मेकिंग क्लासेस इंटरेस्टिंग. तो हम अपनी क्लासेस को, जब आप एक सर्टेन लेवल तक आपका कोरियन अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, उसके बाद हम कोरियन ड्रामा के सबटाइटल्स, जो कोरियन गानों की लिरिक्स, के पॉप की लिरिक्स, उन सबको भी अपने लर्निंग में इंक्लूड करेंगे, ताकि हम अपने कोर्स को, इस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बना पाए. उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन विल बी प्रोवाइडेड. तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अपना बिगिनर्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद, आपको एग्जाम वार्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने बिगिनर्स लेवल का 3 मंथ का
ये कोर्स कंप्लीट कर दिया है और अफोर्डेबल है। और जो हमारा ये कोर्स है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है और स्पेशली जिनका मीडियम हिंदी है, जो कोरियन को हिंदी से सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए हमने इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया है, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कोर्स में इनरोल हो सके और हम सब साथ में कोरियन लैंग्वेज सीख सके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다. 감사합니다.